टेल मी समथिंग, व्हेन अ डॉटर इन लॉ एंटर्स इंडियन हाउसहोल्ड इन अ पैट्रियार्कल सेटअप, तो कौन उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है? कौन बताता है दैट व्हाट शी शुड वियर एंड व्हाट शी शुड नॉट? Who decides that when she can visit her parents? Most of the time, it's not her husband, but it is a mother-in-law. But the question is why? Why does one who suffered the system becomes its enforcer? That's exactly today's concept answers. So the concept is called as patriarchal bargain. And in 1988 में एक टर्किश फेमिनिस्ट डेनिस कांदियोती ने दिया था. And if you are preparing for this year's May 2026, it is very important because it has linkages in all the GS papers. So let's go into it. तो patriarchal bargain को recently एक न्यूज़पेपर ने कवर किया था that patriarchy and the mother-in-law trope in India. We recently seen multiple cases ongoing in India where mother-in-law is the perpetrator. But the question is why? And it is answered by the concept which is called as patriarchal bargain. So let's understand the concept. So patriarchal bargain as a concept was given by Denise Kandioti in 1988. It means the strategies adopted by women to maximize her security and minimize her disadvantage in a patriarchal setup. As a human, you want security and you want advantages in your life, right? You want respect. So women, to maximize their security and to minimize this disadvantage in a patriarchal setup, upholds those system which ultimately oppresses them. Upholds patriarchal system which basically oppresses them. So this is an irony. How this patriarchal bargain works, let's understand that. First is family expectations. Women should conform to family expectations. Women should agree कि जो भी family उनसे expect करती है. So you should be a good daughter, good wife, good mother. तो आपको इसके हिसाब से रहना पड़ेगा, right? Why women do so? Because it maximizes their security and it minimizes their disadvantage. आप अगर ऐसा good daughter, wife and mother हैं, तभी आप क्या कहोगे? संस्कारी हैं. If you go against this, you will be labeled, into multiple terms. So to maximize their security and minimize their disadvantage, women conform to this family expectation. But do you know that what they bargain? But they bargain their autonomy. They bargain their self-expression, their freedom. Second way of seeing how this patriarchal bargain works, that when a woman becomes a mother of son in a patriarchal setup, then only she gets respect. Then only she gets social approval. Then only she gets social respect in society. And क्या करता है इससे? It maximizes her security and it minimizes her disadvantage. In return, what woman does? Woman starts discriminating against girl child. बिकॉज सन्स की माँ रहेंगी तभी ये चीज मिलेगा, नहीं रहेंगी तो डिस्क्रिमिनेशन होगा. इसीलिए वुमेन इन मल्टीपल केसेस वर इन्वॉल्वड इन फीमेल फीटिसाइड केसेस despite being a woman, discriminating against girl child. Then one more way to see how this patriarchal bargain works, that when woman enforces or when woman polices this young daughter, वो बताएगी या कंट्रोल करेगी what to wear, what not to wear, what to eat, what not to eat, how should be your routine. Then only she gets social approval from patriarchals. Then only she gets respect in society. However, क्या होता है इससे? women solidarity. क्या बार्गेन कर रही है वो? वुमेन सॉलिडारिटी को बार्गेन कर रही है, वो टूट जा रहा है पूरा. तो दिस इज हाउ पैट्रियार्कल बार्गेन वर्क्स. नाउ व्हाट आर इट्स कॉजेस? तो देयर आर सम कॉजेस ऑफ पैट्रियार्कल बार्गेन. तो पहला कॉज है स्ट्रक्चरल डेप्रिवेशन. बिकॉज इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी ऑल द रिसोर्सेज आर जनरली कंट्रोल्ड बाय मेन. सो इफ अ वुमेन लैक्स एक्सेस टू प्रॉपर्टी, एक्सेस टू एजुकेशन, इनकम, तो वुमेन आर डिपेंडेंट ऑन दैट पैट्रियार्क. सो उनके लिए जो रिश्ते हैं पति का, फादर का, बेटे का, दे आर नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स, दे आर ऑल्सो सर्वाइवल स्ट्रक्चर. So to maximize their security and to minimize their disadvantage, उस structural deprivation के कारण, उस survival instinct के कारण, you start protecting those norms, you start enforcing those norms. Because if you go against it, क्या होगा? You will lose out on those relationships. You will have the issue of survival. मतलब you will have issue of this security as well as disadvantages बढ़ जाएंगे. Second cause is social reward structure in Indian society. तो Indian society में reward किसको मिलता है? Compliance को मिलता है. If you comply with the norms, you will get rewarded, you will get respected. It happens to both sons and daughters, male and female. तो अगर आप respect कर रहे हो सोसाइटी के नॉर्म्स का, यू विल गेट रिवॉर्डेड, यू विल गेट रेस्पेक्टेड. तो कंप्लाई करोगे देन यू आर अ संस्कारी. इफ यू डू नॉट कंप्लाई देन दे विल लेबल यू एज कैरेक्टरलेस बेसिकली. तो दिस इज अ सोशल रिवॉर्ड स्ट्रक्चर. सो वुमेन कंप्लाइज एंड डेटा आल्सो शोज दैट 30% ऑफ वुमेन एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो डेटा था, दे जस्टिफाई दैट हस्बैंड जो मारते हैं, हस्बैंड्स बीटिंग. देन यहां भी डेटा जस्टिफाइज स्ट्रक्चरल डिप्रिवेशन. अराउंड 23 to 25% वुमेन ऑपरेट देयर बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली. Only 13% of women have this agricultural land on her name. So this survival instincts, this social reward structure ensures there is patriarchal bargain. Third most important cause is intergenerational power delay. It tells women कि भाई अभी सफर कर लो and बाद में you will get respect, you will get power. So intergenerational power delay. Suffer now and rule later or control later. So you enter as daughter-in-law, but you have to wait, have sons, have lineage, have sons, गेट सोशल रेस्पेक्ट एंड लास्ट में यू शुड कंट्रोल, यू शुड रूल. तो इसी वजह से मदर इन लॉ एक्ट्स एज अ कमिटेड डिफेंडर ऑफ दिस पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन. बिकॉज वो जब मदर इन लॉ बन रही है तब उनका टाइम आ रहा है कंट्रोल करने का. तो हैव यू सीन दिस? क्योंकि सास भी कभी बहू थी और सास बहू थी. So it is not a drama, it is a that mechanism, patriarchal bargain mechanism. Now we'll talk about its implication. इसका implication ये है that women
सोल बिकम्स गेट कीपर्स ऑफ दिस पैट्रियार्की, है ना, कि पैट्रियार्की के नॉर्म्स कौन है, वुमेन ही एनफोर्स कर रही है। सेकंड इसका इंप्लीकेशन है दैट पैट्रियार्की इज लॉ रेजिस्टेंट इन इंडिया। दैट्स व्हाई यू विल सी द डेटा कि भाई इंडिया में आज भी चाइल्ड मैरिज होता है। इंडिया इज होम टू 1/3 ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड, तो चाइल्ड मैरिज इज हैपनिंग। देन डाउरी रिलेटेड डेथ, अगर मैं डेटा निकालूं तो हर 90 मिनट्स में एक डाउरी रिलेटेड डेथ हो रहा है। ऑल द लॉज आर टारगेटिंग मेन, ऑल द लॉज आर टारगेटिंग पैट्रियार्की, बट दे आर नॉट टारगेटिंग पैट्रियार्कल बार्गेन व्हिच इज हैपनिंग विद इन द फैमिली। ये नहीं टूट रहा है, एंड लॉ शुड फोकस ऑन दिस। इट इज इनविजिबल, it is within relationships, it is quoted in the form of love, justified in the name of security, freedom is restricted. Third इसका implication है that it destroys female or women solidarity, right? Despite mother-in-law suffering the same problem, she is not having solidarity with other women, basically with daughter-in-law. So it destroys women's solidarity as a whole. Now comes the linkage part, GS linkage. So if you see इसको कहाँ का लिंक कर सकते हैं, तो इंडियन सोसाइटी में हम लिंक कर सकते हैं। बेसिकली यू सी रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, यू विल सी सोशल एम्पावरमेंट, उसमें आप लिंक कर सकते हो अबाउट दिस पैट्रियार्कल बार्गेन, राइट? यू कैन कोट इन NFHS जो 5 और 6 का डेटा भी आ गया बेसिकली उस पे, दैट इफ there are trends going against women, you can quote this term which is called as patriarchal bargain, which is invisible. What are the solutions to take? इसमें भी एक progressive कर सकते हैं that laws is the now is the time to target this patriarchal bargain which is invisible, which is inside relationships. You can also link to women movement. जब women movement generally शुरू में start हुआ था, it was led by women and ultimately it is now women are leading, but they have not destroyed the patriarchal bargain within the structure. Similarly workplace में भी ये दिखता है, जब Me Too movement हुआ था, right? So many women were initially silent during harassment. So it was a patriarchal bargain basically, that they were trying to maximize their security and minimizing their disadvantage. So this is a patriarchal bargain. This was a patriarchal bargain at the workplace. And similarly, role of urbanization, जब आप सोसाइटी में भी पढ़ते हैं urbanization को basically, then उसका एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर फैमिली, right? That the patriarchal bargain has weakened in the nuclear family because women के पास क्या access to resources है। Now if I talk about Indian society, उसमें we have heard about personal laws of different religion, कि कहीं ना कहीं they are all the personal laws are patriarchal, and इसमें क्या है, patriarchal bargain का ही concept है, where women defends those laws, those are going against them. For example, ban on triple talaq, women also protested against the decision of Supreme Court. Sabarimala mein temple entry, it was allowed, women again protested, some women, right? Because that was patriarchal bargain. Then similarly जो schemes हैं, आपने पढ़ा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, so it targets son preference, but it do not talk about mother-in-laws, those who enforce it. Similarly PM मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना में क्या है, आप अकाउंट में कैश तो ट्रांसफर कर रहे हो मदर के अकाउंट में, बट वो कैश कौन कंट्रोल कर रहा है, फैमिली। देन सिमिलरली सुकन्या समृद्धि योजना, सेविंग्स आप कर रहे हो डॉटर के अकाउंट में, बट उनका डिसीजन नहीं, डॉटर जब बड़ी हो रही है उनका डिसीजन नहीं है मैरिज में, तो दैट इज पैट्रियार्कल बार्गेन, द कांसेप्ट ऑफ पैट्रियार्कल बार्गेन, दैट लॉज हैव नॉट टारगेटेड दिस पैट्रियार्कल बार्गेन व्हिच इज इनविजिबल। एंड अगेन पॉलिटी में बात कर सकते हैं, पॉलिटी में आपने ये कांसेप्ट देखा होगा, सरपंच पति सिंड्रोम और प्रधान पति बेसिकली, वेयर वुमेन आर सरपंच और हेड बट दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर हस्बैंड्स और इन-लॉज और मेल पैट्रियार्क बेसिकली, इट इज पैट्रियार्कल बार्गेन ड्यू टू दिस। अगर मुझे और डायमेंशन देखना है तो जेंडर जस्टिस, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है मींस में अबाउट जेंडर जस्टिस, इसमें पैट्रियार्कल बार्गेन का कांसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। देन अगर मैं सोशल जस्टिस में देखूं तो वी हैव दिस गोल, राइट, SDG 5 अचीव करना, विच टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। तो पैट्रियार्कल जो बार्गेन है, इट इज काइंड ऑफ हिंडरिंग टू अचीव दिस। देन गवर्नेंस की भी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी जेंडर जस्टिस अगर हम देखेंगे, स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी ऑफ वुमेन देखेंगे, देन यहाँ भी पैट्रियार्कल बार्गेन एज अ हिंडरेंस टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, गुड गवर्नेंस में बाधा बनेगा, एथिकल गवर्नेंस में बाधा बनेगा। देन GS3 में आता हूँ, विच इज बेसिकली इकोनॉमी, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में लिख सकता हूँ, बिकॉज एक रीजन था पैट्रियार्कल बार्गेन होने थे, विच इज स्ट्रक्चरल बैरियर्स, राइट, वुमेन लैक एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइक इनकम, तो इस वजह से पैट्रियार्कल बार्गेन रहेगा विच विल हैम्पर देयर LFPR हैम्पर करेगा, तो कभी भी ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं हो पाएगा ड्यू टू दिस पैट्रियार्कल बार्गेन। एग्रीकल्चर में भी हम देखते हैं एग्रेरियन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, वुमेन फार्मर्स आर इंक्रीजिंग, बट उनके पास सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है, लैंड का टाइटल नहीं है, तो दे लैक एसेट्स, तो दे हैव टू टेक सोशल अप्रूवल, दे हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ देयर फैमिलीज, तो पैट्रियार्कल बार्गेन, ठीक है, इस वजह से ट्रू सेंस में एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है वुमेन का विद इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। देन उसके बाद इंडिया में जो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू पैट्रियार्कल बार्गेन, बिकॉज सोसाइटी के हिसाब से वुमेन को काम करना होता है, जॉब्स करना होता है, सोसाइटी के हिसाब से वुमेन जॉब्स लेती हैं, वुमेन सेंट्रिक जॉब्स लेती हैं। देन द डोमेस्टिक वर्क व्हाट दे डू, दे वर्क इन केयर इकोनॉमी, दे वर्क डोमेस्टिक ख्याल रखती है सबका, केयर इकोनॉमी में काम करती है, बट GDP में जो अनपेड वर्क है बेसिकली डोमेस्टिक वर्क है, इट इज अनरिकॉग्नाइज्ड, तो राइट, तो अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, सेल्फ एस्टीम नहीं होगा, तो ये इट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस पैट्रियार्कल बार्गेन, but women's work is unrecognized or not calculated within GDP. Then financial inclusion, हमने देखा only 23% women independently operate their bank account, तो financial inclusion तो हो गया है, but independence इसमें नहीं है, एजेंसी नहीं है, powered नहीं है वो, they're dependent upon male counterparts. Then there is feminization of poverty, feminization of old age poverty, सब में patriarchal bargain का concept लगेगा। Then अगर मैं ethics की बात करूँ तो ethics में बहुत सारे मैं theories में भी जोड़ सकता हूँ, इसको देख सकता हूँ मैं,
राइट, पहले इसमें आते हैं, एथिक्स में देखें। सो रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, इसमें पैट्रियार्कल बार्गेन आ जाएगा बिकॉज अर्ली कंडीशनिंग हो रही है। देन सोशल एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, तो सोसाइटी का एटीट्यूड जो है इट इज एनकरेजिंग दिस पैट्रियार्कल बार्गेन। देन इफ आई टॉक अबाउट, आपने पढ़ा होगा देयर आर डिफरेंट वेज टू चेंज एटीट्यूड, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हिच टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, इसमें आप लिख सकते हो पैट्रियार्कल बार्गेन। देन लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डाल सकते हो पैट्रियार्कल बार्गेन, it is destroying women's solidarity, so that is lack of emotional intelligence. Then laws, rules and regulations and conscience as a source of ethical guidance, ये laws, rules, regulations तो है ना, women के लिए प्रोटेक्शन वाले लॉज हैं, बट इट इज नॉट इफेक्टिवली एनफोर्स्ड बिकॉज ऑफ दिस हिडन और इनविजिबल पैट्रियार्कल बार्गेन। तो हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज बाय काउंटरिंग दिस पैट्रियार्कल बार्गेन व्हिच इज इनविजिबल, व्हिच इज हिडन। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, जो पॉश एक्ट है या मीटू मूवमेंट हुआ था, यहाँ पैट्रियार्कल बार्गेन लिख सकते हो कॉर्पोरेट सेटअप में। देन कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की बात में आ जाएगा, इसमें भी ये चीज आ जाएगी। इन दिस वे यू कैन लिंक दिस पैट्रियार्कल बार्गेन इनटू मल्टीपल थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आई जस्ट वांट यू टू कमेंट इफ यू आर एबल टू लिंक इट। अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको भी प्लीज कमेंट करके बताना, और यू कैन कम टू माय टेलीग्राम ग्रुप एंड वहां मुझे बता सकते हो। थैंक यू।